Good evening, you're watching Mission 2024. I'm Preeti Chaudhary. Let me quickly take you through the headlines first. Air quality in the national capital deteriorates after Diwali. AQI above 500 in many parts of Delhi reaches hazardous levels. Delhi government hints at the return of odd-even rule. अगर 450 से प्लस अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर AQI जाता है तो फिर सरकार इसकी समीक्षा करके Prime Minister Modi hits out at Chhattisgarh Chief Minister Baghel over Mahadev betting app scandal, asks if Baghel sends some money to Delhi. 5 एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। Politics escalates over Congress minority declaration in Telangana. BRS says Congress is betraying minorities. Owaisi calls it a poll gimmick. British Prime Minister Rishi Sunak sacks his Interior Minister Suella Braverman. This after she was accused of stoking tensions and calling pro-Palestine protest hate marches. Deadliest phase of Israel's Hamas hunt as war rages near Gaza hospital. India votes for UN resolution slamming Israel's occupation of Palestine. 145 nations vote in favor of UN resolution. As Telangana gears up for elections, the battlefield is filled with heated debates. Politics escalates over Congress's minority declaration. BRS corners the Congress, accusing them of working against minorities. The party hit back, alleging KTR trying to mislead the minorities. Here's the full report. With Telangana elections fast approaching, the battlefield is filled with heated debates on which is the most credible party for people of the state. In the latest face-off, BRS has cornered the Congress, accusing them of working against minorities. Congress has promised a caste survey in Telangana, on the basis of which minorities will be assured opportunities in government jobs, education, reservation and other sectors. BRS has likened this move to the BJP's ideology, calling this an anti-minority strategy. आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। In a bid to consolidate minority votes, the Grand Old Party has presented its minority declaration, which includes Sikh and Christians. They've increased minority welfare budget to 4,000 crore, promised financial aid up to 1 lakh for students completing higher education, monthly honorarium of 12,000 for priests of all religions, schemes for newlyweds, etc. This is yet another attempt by Mr. KTR to mislead the minorities. I mean, I'm surprised that he lacks the basic sense and understanding of the backward classes and its quota. The categorization of Muslims for reservation is BCE. You know, when we have given a very strong minority declaration, and I don't think there is anything, if you want to find fault, you can find fault for everything. Whatever their schemes are also, if you can find fault. But I think we are looking at a very positive way. We have given a very positive minority declaration. I don't think there will be any problem. I mean, what they have not done, they are trying to do what. The minority in Telangana has so long pledged their support to MIM. Asaduddin Owaisi's brother, Akbaruddin, calls the Congress minority declaration a poll gimmick. हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने इख्तिदार को हासिल किया और रियासत आंध्र प्रदेश में भी, तो सबसे ज्यादा हुकूमत
हुकूमतें अगर रही हैं तो वो कांग्रेस की रही हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उनके पास काम रहता था बताने के लिए। सिर्फ एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। The battle lines are drawn for November 30th. It will be interesting to see which party ultimately wins the people's mandate. With Abdul Bashir, Bureau Report, India Today. Let's quickly cut across to my colleague Abdul Bashir joining us live from Hyderabad. Abdul, get us speed with the very latest. Interesting, the Congress finds itself cornered with the charge of minority appeasement coming in from the BRS as well as the AIMIM. Well, absolutely. See, after the Congress has announced the declaration, several declarations like the BC declaration to 6 guarantees, and now the minority declaration. In minority declaration, the Congress has promised caste census. Accordingly, they will be giving the reservation of in education sector to reservation in government jobs, etc. So this kind of minority declaration, which all includes a 4,000 crore budget for the minorities as well. In minorities, you have Muslims, Sikhs, and other communities as well. But this time, the minority declaration has grabbed attention when it came to the Muslims being added to the BCs. Is what KTR has slammed. His understanding was that Muslims will be added from their separate corporation or minorities to the backward class community, wherein they will lose their separate corporation, their separate budget, and every thing that is separately provided to the minorities, especially Muslims. So he lashed out at the Congress, calling it an BJP ideology related, this move by the Congress, wherein Congress is trying to become an anti-Muslim party. So this is an anti-minority party, we can say. After this has been slammed, then Congress had clarified that they are clear on their, declaration that they have given, and they will follow. And as soon as they have voted to power, they will fulfill the minority declaration that has been announced. This minority declaration, grabs a lot of attention from providing special, categorization to all the amenities that will be given to all the minorities, in particularly the minorities that comes under, Muslims, Sikhs, and other religions as well. Right. All right. Well, understandably, the heat of what's taking place in Telangana, where it comes down to charges of minority appeasement, that just doesn't primarily pertain to the Muslim appeasement. Minority appeasement is going to echo back in states like Madhya Pradesh as well as Rajasthan. However, where Madhya Pradesh is concerned, it's just 4 days left as well as Chhattisgarh for the second phase of polling. Huge row over the Mahadev betting scam refusing to die down. The Prime Minister Modi today delivered a fiery speech in an election rally, challenging and charging at the Chhattisgarh government. Addressing Vijay Sankalp Maharali, he slammed Baghel over the alleged Mahadev betting app scam, in which the ED has linked the Congress leader with the ongoing investigation. Prime Minister Modi said that action will be taken against the corrupt in Chhattisgarh after BJP comes to power. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel was quick to hit back at the Prime Minister over his corruption allegations against the state government. ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है, उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर
कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के आए ना उस पर पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। All right, where not just Chhattisgarh, the state of Madhya Pradesh set to go to polls in just the next 4 days, and with what we witnessed on ground, dead heat. This was my ground report from the quaint, calm town of Chanderi. बंसीलाल जी, आपका पुश्तैनी काम है क्योंकि यहाँ पे 3 पीढ़ियां हैं, आप हैं या आपके बेटे हैं, और वो पोता है, तो वो आपका पोता। हाँ, 3 पीढ़ी है। 3 पीढ़ी। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी भी यही काम करते थे, यही बुनाई का। हमारे पिताजी के पिताजी भी यही काम करते थे, बुनाई का शुरू से। और चंदेरी की ही साड़ी बुनाई होती है? हाँ, चंदेरी की ही साड़ी बुनाई होती है। पहले हमारे जो वाजे थे उन्होंने बनाए, उस टाइम पे पगड़ी साफा बनाए, और जब महाराज ज्योतिरादित्य के महाराज जीवाजी राव थे उस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर से ही माल बनवाया था। हाँ, तो तब से आपके मतलब जहाँ तक आपको आपके पिताजी, उनके पिताजी बस हमेशा से पुश्तैनी काम? हाँ जी, हमारा पुश्तैनी काम है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। आज तो हमारे बच्चे बाहर भी जा रहेंगे, बेच रहेंगे, और पहले वो नहीं था। पहले के लोगों के लिए 2-3 लोग थे, उन लोगों के पास में ही धंधा था। अब ऐसा नहीं है। अब तो हम उन लोगों का तो फ्लॉप हो गया है। अब तो मोहम्मद और कोहली और मोहम्मद अब तो जो 50% से ऊपर बाहर जा रहा है, माल बेच रहे हैं। जो कोहली, आप लोग कोहली और मोहम्मदन जो यहाँ पर अंसारी मोहम्मद, बस आप दोनों काम करते हैं? दोनों ही समाज के काम करते हैं। अब तो खैर ऐसा हो गया कि कुमार भी बन रहे, बाड़े भी बन रहे, और पंडित भी बन रहे, और जेंट्स भी बन रहे। अब तो सभी जात के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धंधा अच्छा हो गया। अच्छा धंधा हो गया, और शासन ने दी उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए सीखने के लिए। सो आज भी उन लोगों के लिए लूम मिला। पहले से बेहतर हुआ? पहले से बेहतर है, आज भी बेहतर है। और हमेशा ये चाहते हैं कि चंदेरी साड़ी का नाम अपना बना रहे। बस। आपने कुछ और नहीं सोचा करने का? बढ़िया है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं। बच्चे भी यही करना चाह रहे हैं? नहीं, अगर ऐसे सोच नौकरी का तो बढ़िया है, नहीं तो ये धंधा है अपने लिए, धंधा साथ में चलेगा और नौकरी लगा तो और बढ़िया है। और सिखाया सबको? हाँ, क्योंकि धंधा ऐसा है, थोड़ा जवानी का रहता है, हाथ पैर सब सही, आंखें चाहिए, इसलिए नौकरी होती है। अच्छा, तो मतलब अगर नहीं चले धंधा तो कम से कम पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी कर जाए, बाहर जाएंगे, बिजनेस करेंगे। इसलिए मतलब आप डायरेक्ट बेचते हो या किसी और को बेचते हो? हम फैब इंडिया के सप्लायर हैं, डीलर हैं। आप फैब इंडिया के डीलर? ऑर्डर लेके काम करते हैं फैब इंडिया को, और अलग से सब जगह बेचते हैं, माल बनाते हैं और सब जगह बेचते हैं। इस गांव में बहुत फैब इंडिया को सप्लाई करते हैं? 6-7 लोग हैं। 6-7 लोग हैं जो आप फैब इंडिया को सप्लाई करते हो। और कौन से डिजाइनर और कौन है जो यहाँ से आपका लेते हैं इस गांव में? चंदेरी बेचते हैं सेठ लोगों के लिए, दुकान खुली है, मतलब शोरूम वगैरह, शोरूम में बेचते हैं, उनको बेचती है। The Chanderi weavers must be that handful of weavers left who have till now successfully opposed the introduction of power looms. बाकियों जैसे देखा जाता है कि हैंडलूम छोड़ दिया है, मशीन ले ली है, यहाँ पे मशीन नहीं होती। मशीन नहीं? क्यों नहीं होती? मशीन इसलिए नहीं है कि फिर हैंडलूम की मर्यादा खत्म हो जाएगी, धंधा पिट जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। अभी क्या है, पहले आप बोलिए। हाँ, अभी क्या है कि जो हैंडलूम का माल बिकता है बाहर, नाम से बिकता है चंदेरी साड़ी के नाम से, और भयाने हैंडलूम में एक ही लूम कहीं चंदेरी के अंदर लग गया हैंडलूम
तो पूरे में वर्ल्ड में नाम बेकार हो जाएगा चंदेरी का। इसीलिए हम चंदेरी का है ही वो अपना हाथों से ही काम, हैंडलूम से ही काम करेंगे और करते रहेंगे और अच्छा चल रहा। पहले कुछ था, आज तो हमारे लिए मालिक की मेहरबानी है कि बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। देश बन के चला, कोई परेशानी नहीं है, अपने मन से डाल दो, जिसको देना उसको वोट देती है। सरकार ठीक चल रही है, काम कर रही है आपका? बढ़िया सरकार चल रही है, भाजपा सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। सरकार से खुश हैं, बहुत बढ़िया खुश हैं। बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी से क्यों खुश है? बीजेपी से इसलिए कि रोजगार सही चल रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते क्या है कि उनके जो योजनाएं वो लाभदायक हैं। क्योंकि आज अपनी बच्ची है, छोटी है, आज बड़ी हो जाती है तो शादी होती है, तो शादी में होने के बाद तो अपन सम्मेलन से शादी कर लेते हैं, तो अपन की बच्ची के लिए 51,000 रुपया का चेक मिलता है, सामान मिलता है। वो तो अभी मिला है ना, लाडली बहना के। लाडली बहना की तो अब मिलना चाहिए। हाँ, अभी तो आज वो 5 साल और पहले से ही मिल लिया है। हाँ, जब जो कमलनाथ 13 महीना के लिए रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने वो किया था, क्या ये बंद कर दी थी, फिर दोबारा चालू। खुश हैं फिर? हाँ, खुश हैं। और लाडली बहना का भी काम चल रहा है सब लोग। अभी मतलब बुनाई की इससे बहुत तरक्की हुई है गांव में। क्योंकि बुनाई का जो दर्जा दिया है इसे, क्या तरक्की हुई है? जी पर्यटक द्वारा, मतलब ये हुई थी ना पुताई, तब से बहुत से पर्यटक आ रहे हैं इधर देखने के लिए। अच्छा, ये जो बाहर जो हर जो दीवारें हैं इनकी पुताई हो रखी है, मतलब अलग अलग रंग कर रखा है। हाँ, तब से लोग ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, पहले नहीं आते थे? पहले ऐसी कम ही आती थी। अच्छा, और हमेशा से यहाँ पर सबसे ज्यादा बुनाई होती है इधर? हाँ, बुनाई होती है इधर साड़ियों की। हाँ, साड़ी, दुपट्टी, सूट वगैरह सब यहीं पर ही होता है। हाँ। और यहाँ से जो आपके फैमिली से जो जाता है फैब इंडिया, दिल्ली जाता है, फैब इंडिया तक जाता है आपके? हाँ, फैब इंडिया वहाँ पर जाता है। थैंक यू। Right across from Coolies live the Ansaris. असलम जी, पहले कैसा था बिजनेस धंधा, अब कैसा है? पहले तो बहुत मद्दा था, आदमी परेशान होते थे, माल भी नहीं मिलता था, पैसे भी टाइम पे नहीं मिल पाते थे। अब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। लूम नहीं चाह रहे हैं चंदेरी में कि मतलब पावर लूम लग गया? नहीं, वो नहीं पसंद। यही हाथ लूम चलने चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, सही बात। हम लोग क्या करेंगे फिर? तो बिना लूम रखना चाह रहे हैं। ये हथकरघा, हाथ मतलब पावर लूम ना लगे। हाँ, पावर लूम ना लगे। क्या सोच के वोट देते हैं? मन में क्या चलता है कि इन मुद्दों पे वोट देना है? भाई ये सोच के चलते हैं कि ठीक है, कोई भी विधायक बन जाए तो उसमें अच्छा काम करे, अपन को बस्ती वालन को लाभ हो, वो अच्छा सिलसिला चलता रहे। अच्छा सिलसिला। कोई लीडर पसंद है? लीडर, हाँ, अभी पसंद है। और क्या? कौन सा? वही देंगे, डिग्गी राजा। डिग्गी राजा को? दिग्विजय सिंह को देंगे। डिग्गी राजा पसंद है? हाँ, पसंद है। क्या है, एक परेशानी ऐसे कि थोड़ी मंजूरी कम बैठ जाती है। क्या है, अपना बिकता है, बाहर जाओ सो उतना अपना हाथ में चाहना है पूंजी, जब बाहर बेच पाएंगे। इधर घर पे आते कोई आ जाते हैं ऐसे। अभी जो सरकारी योजनाएं हैं, लाडली बहन का मालूम है? लाडली बहन योजना मालूम है? कब से आ रहा है पैसा? हुआ 6 महीना हो गए, 6 महीना। सितंबर में शुरू हुआ और सब अब कितना आ रहा है? अब तो 1200 आई थी, और उसके पहले 1000 आ रहा होगा। हाँ, 1000 आई थी। फिर सितंबर से बढ़ा दिया ना, सितंबर में आ रहा है 1250 आ रहा है। हर महीना आता है। हर महीना आपके आ रहा है? हाँ, आ रहा है। यहाँ पे गांव में सब महिलाओं के पास आ रहा है पैसा? अब जो होना है तो खूब आ रहा है मैडम। हर महीना पे काट लिया तो भैया 1250। हाँ। मदद हो रही है उससे? तो खूब जात हर महीना के काट लिया, हर महीना। महीने की महीना पे जाजू कर जात, पता कर जात, फोन में मैसेज आ जाए काट लिया। स्कूल जा रहे हो? नहीं, छोड़ दिया हमने। कब छोड़ा? बस
अभी छोड़ा है वो। अभी बस बस काम है। यहाँ पर स्कूल नहीं है क्या? गांव में स्कूल नहीं है? है ना, 5-6 था। है ना, 5 तक है। 5 तक है। हाँ। तो 5 तक पढ़े फिर छोड़ दिया? हाँ, छठी से छोड़ दिया। नहीं, आपने भी छोड़ दिया? 6वीं में जाती 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया? छोड़ दिया। और तीनों ने क्यों छोड़ दिया इन्होंने? जावे की से मैडम और कुआ जा रहा करबे बम मताई नरवा पर बस का नरवा पर तक कोई चढ़ जात कड़ा नहीं पा इतने उतने आधे जे घर है उतने बोथ ले जात कड़ा ही नहीं पाओ खेतन में हो गए जात पानी मोड़ी का करें सरका थम पर गिला है से घरन के इसे नहीं जात रास्ता खराब है। पर क्यों नहीं जा पाते? दारू खट्टन की मानी जान दी दारू खट्टन भारी बैठे रहते तो इतने बैठे रहते नरवा के लगा खूब दफाई में तो और भयंकर है। सब सुविधा आई है? सब सुविधा आई है। सरकार से खुश है? सब खुश है बिल्कुल सरकार से। इस बार किसकी सरकार लगती है? उसी की सरकार है रहेगी, मोदी की। मोदी की सरकार। बदलाव होना चाहिए इस बार सरकार का। सबके संग में चलेंगे अपन, एक जने कितने जे एक जने को काम है का जो पूरे संसार का काम है जो, तो संसार में ही चलेगा। क्या सोच के वोट डालते हैं? अब जनता जैसी सब तो गाँव पूरी डाल है जैसी सोच के। जहाँ गांव डालता है वहीं सरपंच जो बताए उधर सब चले जाए तो उधर ही जाकर वोट डाला है। सुविधा आई है आपके गाँव में? सुविधा है सब। सुबह सरकार से खुश है? हाँ, सब कुछ केरा सब सही है, सब सही चल रहा है। बदलाव नहीं चाहते? नहीं बदलना चाहिए सर? नहीं बदलना सरकार। आप समझो आप समझो। क्या सोच के वोट देते हैं? यही रोजगार सोच के देते हैं। रोजगार मिला है? रोजगार खूब मिला है, लेकिन एक बात है कि हमने पटवारी हमने शिकायत करी, कागज लगा, जमीन के पैसा नहीं आ रहा, एक भी नहीं आया। नहीं आया, एक भी नहीं आया। जब से डल रहे हैं जब से एक भी नहीं आया। सरकार से दुखी हो? नहीं दुखी नहीं है,